Hello students, myself Rakesh Misra. In this video lecture, I will describe you communicable and non-communicable diseases for class 9th. It is also important for class 12, but up to certain limits, there is some elaborative form of the communicable and non-communicable diseases are held in class 12. That is over, but communicable and non-communicable diseases will be discussed in this video lecture. So, be conceptual and be silent regarding few minutes for the communicable and non-communicable diseases. Actually, communicable diseases are also known as infectious diseases that is spread from one person to another person, and non-communicable diseases are those kinds of diseases that we suffer from the non-communicable diseases. It will never affect to another one. Let us talk about the non-communicable diseases first, later than the communicable diseases, because list of non-communicable diseases are very shorter than the communicable diseases. So first of all, the non-communicable diseases. Non-communicable diseases. It is also known as non-infectious diseases. Non-infectious diseases. Suppose that a person suffering with non-infectious diseases. कोई पर्सन है, इसको कोई ऐसी बीमारी हो गई है जिसको हम एक कैटेगरी में पुट कर सकते हैं जिसका नाम है नॉन इन्फेक्टियस डिजीज, ठीक है। और उसके बगल में एक हेल्दी पर्सन है, ये क्या है, अनहेल्दी, और ये क्या है, हेल्दी। सो द नॉन communicable diseases will never spread even if you touch, even if you feed, or even if you shake hand with the other person. The unhealthy person, that is the diseased person of non-communicable diseases, may able to touch, may able to shake hand, or may able to share the foods or diets. It will never spread from the unhealthy to healthy person. That is, the disease will never spread from unhealthy to healthy person. बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जो मेरे बगल में किसी को है और मुझे नहीं होगा. फॉर एग्जाम्पल, जनरल हेडेक. जनरल हेडेक की मैं बात करूं, किसी को सर दर्द है, उसके बगल में आप रहेंगे, सर दर्द नहीं होगा. डायबिटीज, बगल में किसी को डायबिटीज है, आपके घर में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो डायबिटिक पेशेंट है. इसका रीजन ये नहीं कि उसका कोई फैक्टर्स आपको अफेक्ट कर सकता है डायबिटीज का, ठीक है. इसके अलावा अगर कोई ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर, एचडीपी, हाई ब्लड प्रेशर और लो ब्लड प्रेशर, कार्डियक अरेस्ट की किसी को प्रॉब्लम है, ठीक है, कार्डियक की प्रॉब्लम, आर्थराइटिस की प्रॉब्लम है, जॉइंटिस है, गाल स्टोन की प्रॉब्लम है, अपेंडिसाइटिस है किसी को, अपेंडिसाइटिस. तो कुछ भी अगर आपको प्रॉब्लम है, इसमें से कोई भी प्रॉब्लम है, तो उसका मतलब ये नहीं कि कोई दूसरा पर्सन अफेक्टेड होगा. बॉडी के एबनॉर्मल सेल्स ग्रोथ कर रहा है, ट्यूमर है, इवन तो कैंसर, उसके बगल में आप रहिए, नहीं होगा, ठीक है. रीजन क्या है, हमारी अपनी एबनॉर्मेलिटी की वजह से ये बीमारियां हमको फैलती है, अपनी एबनॉर्मेलिटी को, या इसको बोल सकते हैं रूटीन फॉल्ट, डाइटरी फॉल्ट्स और एनवायरमेंटल फॉल्ट्स. रूटीन फॉल्ट, एनवायरमेंटल फॉल्ट और डाइटरी फॉल्ट्स causes non-communicable disease in our body and make you unhealthy. Routine fault, for example, from Monday to Saturday, if you wake up early 6 morning, then if you are the professional worker or students, then it is not possible to wake up at the same time over the Sunday. That is called routine fault, and that will make you ill. So these problems are actually never spread out from one person to another person.
there is a no source of infection. I hope your concept regarding non-communicable diseases is clear. If you have any problem, then make that problem a list. Make a list of that problem and share with us with the live classes. Now back to the communicable diseases. इसको आप स्प्लिट आउट करें, इसको थोड़ा सा रिलैक्स कर दें ताकि आपको communicable diseases क्लियर हो जाए. Communicable diseases आपको कुछ नहीं करने हैं. हेडिंग में आप पॉइंट 2 यहाँ पे पुट कर सकते हैं, सेकेंड पॉइंट, और इसको आप इन्फेक्टियस की सीरीज में. अब इसको कैसे समझेंगे? फॉर एग्जाम्पल सपोज दैट ये कोई अनहेल्दी पर्सन, ये कौन है? अनहेल्दी पर्सन, ठीक है. और उसके बगल में ये कौन है? हेल्दी पर्सन. और अनहेल्दी किस रिस्पेक्ट में है? अनहेल्दी है वो कम्युनिकेबल के रिस्पेक्ट में, यानी कि इसको कौन सी बीमारी है? कम्युनिकेबल. तो ये पर्सन जो है, इस पर्सन के अप्रोच में जैसे ही आएगा, ये पर्सन भी क्या हो जाएगा? अनहेल्दी हो जाएगा. तो कैसे डिफिनीशन लिखेंगे? इसको लिख लीजिए कॉपी में. डिजीज दैट ट्रांसमिट्स फ्रॉम वन पर्सन टू another person through various modes. Modes means food, water, air, or biotic agents, maybe the insects, mosquito, flies, etc. are called as communicable diseases. So communicable, on the basis of communicable diseases, you can write the definition of non-communicable diseases. Diseases that may spread from one person to another person through food, water, air, or the any biotic agents. आगे लिख सकते हैं. Or the any biotic agents like housefly, mosquito, etc. are called as communicable diseases. I hope your concept regarding the communicable and non-communicable diseases is over. ठीक है. एग्जाम्पल ऑफ कम्युनिकेबल डिजीजेज आर वेरी लॉन्ग. अब उसको एक एक करके पैथोजन के बेस पे डिस्क्राइब करते हैं. तो लिख लीजिए आगे. ऑन द बेसिस ऑफ पैथोजन द लिस्ट ऑफ कम्युनिकेबल डिजीजेज आर गिवन बिलो. पॉइंट 1, वायरल डिजीजेस. वायरल डिजीजेस पे पहले डिस्कस करते हैं. मे बी वीडियो बिकम लॉन्ग and maybe the time may take too longer time, so there is a need to make the second part of the video, but in this video lecture probably I will try to explain the bacterial and viral diseases. Viral diseases, बहुत सारे ऐसी बीमारियां जो वायरस से फैलती है. तो सिंपली द डिजीज दैट इज स्प्रेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन थ्रू द वायरस इज नोन एज वायरल डिजीज. दैट इज इट इज स्प्रेड थ्रू वायरसेस. और वायरसेस क्या होते हैं? लिविंग और नॉन लिविंग के बीच में एक अभी अपने जगह को खोजते हुए एक पार्टिकल्स मान सकते हो. वायरसेस की डिस्कवरी डीजे आइवानोवास्की ने टीएमवी के फॉर्म में किया. एमडब्ल्यू स्टेनले ने इसको क्रिस्टल के फॉर्म में भी कन्वर्ट कर दिया था. मतलब जैसे आपके घर में धूल उड़ के आती है, वैसे वायरस भी नॉन लिविंग की तरह से हवा में उड़ते रहते हैं ऐसे. यानी वो लिविंग बॉडी के कांटेक्ट में जब तक आएंगे नहीं कोई भी वायरस, वो लाइव बिहेवियर सर्वाइव नहीं कर सकते, मतलब लिविंग बिहेवियर शो नहीं कर सकते. ठीक है. सो वायरस इज नाइदर लिविंग नॉर नॉन लिविंग थिंग्स. इट इज कनेक्टिंग लिंक्स बिटवीन द लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स. कॉन्सेप्ट रिगार्डिंग वायरसेस इज वेरी ब्रॉड एंड इट विल बी डिस्क्राइबिंग 11th class. There is no any such kinds of description in class 10th. The full description of virus will describe in class 11th. So viruses are actually the connecting links between the living and non-living. Keep in mind. And so many viruses are held in our environment. The specific key features of viruses are: virus that infect to animals will never infect to the plants. Keep in mind. वायरस जो प्लांट्स को इन्फेक्ट करते हैं वो एनिमल को नहीं इन्फेक्ट कर सकते हैं, और जो एनिमल को इन्फेक्ट कर सकते हैं वो प्लांट्स को इन्फेक्ट नहीं करते.
और एनिमल्स में भी स्पेसिफिक होते हैं। जो वार्म ब्लडेड के वायरस है वो वार्म ब्लडेड को इन्फेक्ट करते हैं, जो एनिमल कोल्ड ब्लडेड के लिए स्पेसिफिक है वो कोल्ड ब्लडेड के वायरस से इन्फेक्ट करते हैं। तो ये हम लोग वार्म ब्लडेड एनिमल्स है, इसका कॉन्सेप्ट आप जो है बायोडाइवर्सिटी चैप्टर में पढ़ चुके होंगे, ठीक है। इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम रिगार्डिंग वार्म ब्लडेड एंड कोल्ड ब्लडेड आई विल आल्सो एक्सप्लेन यू, बट only you need to focus on the viruses that are specific for the particular animals and for the particular plants। अब एग्जांपल पे आते हैं वायरसेस के, कौन कौन से वायरसेस हमारे एरिया में है जिससे हमको बीमारी फैलती है। तो सबसे कॉमन और मोस्ट टाइप ऑफ वायरस आपका अभी चल रहा है SAARC, सार्क। ये SAA नहीं बल्कि SRC, सार्क, ये आपके सिलेबस में, ठीक है। सार्क नहीं, सार्स है, सार्स है, ठीक है। ये अभी आपका सिलेबस में, इसलिए मैं इसको एक्सप्लेन कर दे रहा हूं, ठीक है। इसका फुल फॉर्म होता है सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। SYNDROME, सिंड्रोम। सार्क टाइप ऑफ वायरस जो अभी कोरोना है उसी का ब्रांड का है, जिसको SARS-CoV-2 भी बोलते हैं कभी कभी, SARS-CoV-2। ये भी रेस्पिरेटरी फेल्योर, रेस्पिरेटरी सिस्टम पे अटैक करता है। और ये सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम की मैं बात कर दूं तो ये सीवियर मीन्स होता है मल्टीपल, एक्यूट मीन्स होता है, लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि ऑल दोज डिजीजेस that are having very short duration in human population or human body, that is the acute. Respiratory means related to the respiratory system. Syndrome means the multiple factors, multiple symptoms, that is अभी अब कोरोना की मैं बात कर दूं तो स्नीजिंग, कफिंग, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हमारी बॉडी में आने शुरू हो जाते हैं। तो एक साथ मल्टीपल फैक्टर्स जिसमें आते हैं उसको सिंड्रोम बोलते हैं। तो सार्क जो है ये वायरल डिजीजेस है, सार्क वायरस होता है, ठीक है। इसके अलावा क्या है, इसके अलावा अभी लेटेस्ट में पढ़ रहे हैं कोविड-19। कोविड-19 की मैं बात कर दूं तो यहां पे जो CO जो दिख रहा है, CO का मतलब होता है कोरोना, कोरोना यानी ये वायरस है कोरोना, ठीक है। VI का मतलब क्या होता है, VI का मतलब होता है वायरस, और D का मतलब होता है डिजीज, और 19 का मतलब 2019 का ओरिजिन है, 2019 का। इस वजह से कोरोना से होने वाली जो बीमारी उसको कोविड-19 कहते हैं। इसके अलावा बहुत सारी ऐसी बीमारियां जो वायरस से होती है। फॉर एग्जांपल पोलियो वायरस, इससे होता है पोलियो वायरस, ठीक है। रेबीज, पोलियो वायरस में क्या होता है, वो सीवियर पैरालिसिस का कंडीशन आ जाता है और लाइफ टाइम चलता है। रेबीज ये कुछ ऐसे जो जीभ से चाट के पानी पीने वाले हैं। फॉर एग्जांपल आपके जो जैकॉल है, ठीक है, डॉग है, ठीक, वॉल्फ है, तो इससे कैट है, इनके जीभ में यानी सलाइवा के सलाइवरी ग्लैंड्स में, ठीक है, जो टंग है उसके सलाइवरी ग्लैंड्स में ये वायरसेस रहते हैं और ये एक उनके काटने से इंसानों में आते हैं और फिर उसमें सीवियर प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं, ठीक है। इसके अलावा एड्स, एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम, एड्स वायरस किसकी, एड्स बीमारी है और वायरस इसका है HIV। ये कैसे चलता है, HIV, ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस। सो दीज आर द सम इंपॉर्टेंट डिजीज रिगार्डिंग द virus. I will describe you the next disease, that is the bacterial disease, protozoan disease, helminth disease, other fungal diseases, so many kinds of diseases and their mode of infection in next video lecture. In this video lecture you have learned regarding the communicable disease, non-communicable disease, concept of non-communicable diseases and their description, their example is over. Concept of communicable diseases is going on. That is the concept of communicable disease part 1 you may probably
understood and you may probably put the heading concept of communicable disease. It is ongoing process. आप इसको put कर सकते हैं, ठीक है. नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मैं बैक्टीरियल डिजीजेस, फंगल डिजीज और बाकी चीजों के बारे में कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूंगा, ठीक है. वायरल डिजीजेस के ये कुछ एग्जांपल है जो आपके सिलेबस में. इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम, सिम्टम्स एंड देयर मोड ऑफ इन्फेक्शंस फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन एंड रिलेटेड टू द वायरल डिजीजेस, then you may create the links, that is the list, and discuss with me in the live classes. आप उसकी लिस्ट बना लीजिए बीमारियों की, उसको हमारे साथ जो है लाइव क्लासेस में शेयर करेंगे. थैंक यू.